Hello aspirants, my name is Sumit Shukla and let me welcome you to the social media platform of the Officers Career Academy. आज हमारे साथ Officers Career Academy के डायरेक्टर सर बैठे हैं. हेलो डायरेक्टर सर, आप कैसे हैं अभी? आई एम फाइन, थैंक यू सुमित. ओके, आपने जैसे हम जानते हैं आपने नेशन को सर्व कर चुका है, आपने डिफेंस में सर्व किया है. आप हमें कुछ बताना चाहेंगे अपने डिफेंस की जर्नी के बारे में, आपने अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे की? ओके सुमित. Well, I joined the Air Force in 1993. Okay. And we are having an initial engagement with the Air Force for 20 years. Okay. So I served my motherland for 20 years and in 2013, Okay. I got retirement from the Air Force. This journey was very beautiful. I learnt a lot of things from the Air Force. When I joined the Air Force, I was just a kid. But the defense or Air Force make me a responsible citizen, a responsible person for our nation. During this particular tenure of Air Force service, I got the opportunity to serve the nation at different locations. Basically, my training was completed in Bengaluru, Karnataka. Later on, my first posting was in the Jammu Kashmir. After the Jammu Kashmir, I was posted to Andaman Nicobar, Port Blair. And after the Port Blair, I got the posting in Lucknow. From Lucknow, I came to the Pune. And after serving 5 years in the Pune, my last posting was in the Jaisalmer, Rajasthan. So I saw the all India and the experience of whole India. My most time was passed in the Pune only during my service. So this was all about my service from 1993 to 2013. Okay. So after retiring from the इंडियन एयरफोर्स, आपको वो क्या चीज़ थी जो आपको उन्होंने इंस्पायर किया कि आपने सोचा कि मुझे अब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए जो डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, वो जो ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स में. तो आपने वो क्या चीज़ था जो आपको मोटिवेट किया कि आपको एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए? वेल, गुड क्वेश्चन सुमित. एक्चुअली जब हम लोग 20 साल की सर्विस करते हैं एयरफोर्स में, तो रिटायरमेंट होने के बाद हमारे सबके दिमाग में रहता है कि वी शुड सर्व द कंट्री विद द डिफरेंट mediums in the different capacity. So most of us are joining the bank. Okay. From the Air Force, the main lot is joining with the banks. Some are going to the SSC. In my case, I got selected for the UPSC and SSC. But I could not qualify the UPSC interview, and in the SSC I got income tax. But I decided not to join the SSC, and I chosen the passion of this particular teaching, because from my childhood I am passionate about academics, passionate about study. So I chosen this particular field of education after my retirement. Okay sir. सर, वो क्या कॉमन पैरामीटर होना चाहिए एक स्टूडेंट को जब वो खोजते हैं कि मुझे ये डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है, ये एकेडमी ज्वाइन करना है, तो वो क्या पैरामीटर्स होना चाहिए एक स्टूडेंट को चूज करने के लिए कि हाँ मेरे लिए ये एकेडमी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा करियर के लिए? दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन बाय सुमित. सी फ्रेंड, एकेडमी क्यों चाहिए? जब मैंने ये प्रोफेशन में आया, जब मैंने एकेडमी शुरू की, तो बिफोर दैट आई विजिटेड डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री. आई हैव गॉन टू JNK, जम्मू, दिल्ली. आफ्टर दैट आई गॉन टू कानपुर आल्सो. Here in the Maharashtra, I visited Nasik, Nagpur, different academies of Pune. First, I tried to find out what is the academic pattern and what is the requirement of students. So after analyzing all these things, I got that स्टूडेंट को क्या चाहिए. उसको एक पर्टिकुलर एक शेड्यूल चाहिए जहाँ पे उसके क्लासेस प्रॉपर टाइम पे हों, जहाँ पे उसको एक रहने के लिए पीस एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ पे वो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके. चूँकि हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो माँ बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे सुबह शाम अपने आप को फिजिकली फिट रख सकें. तो जब भी स्टूडेंट कोई एक एकेडमी की खोज में जाता है, सर्च करता है, तो उसको 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए. सबसे पहले वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, कंडीसिव है या नहीं. फिर वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसी हैं. वहाँ के आप कुछ बच्चों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं बच्चों से कि जो बच्चे 6 महीने 1 साल से रह रहे हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है. अगर वहाँ के बच्चे आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो नेचुरली दैट इज़ ए गुड प्लेस. तो पहला आपका हो गया बच्चों से इंटरव्यू. सेकेंड, चूँकि आप डिफेंस के लिए जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास ग्राउंड भी होना चाहिए, क्योंकि डिफेंस के लिए फिजिकल फिटनेस इज़ द फर्स्ट एंड अटमोस्ट रिक्वायरमेंट. तो अगर वो चीज़ है तो दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट फॉर द एकेडमी. तो इन 2 चीज़ों को अगर हम देखते हैं और सर्च करने के बाद हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में दोनों चीज़ें हैं, तो वो एकेडमी को हम चूज कर सकते हैं.
सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखा गया है कि एनडीए में आना तो चाहते हैं लेकिन उनको बहुत बेसिक आइडिया नहीं होता है कि एनडीए क्या है, तो आप एनडीए के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि एनडीए एग्जैक्टली है क्या? Okay, NDA, that is a National Defense Academy located in खड़गवासला, पुणे. ये भारत का ही नहीं एशिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो डिफेंस फोर्सेस के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करता है. यहाँ से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है. इवन सम फॉरेन जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके भी कैडेट्स आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स. चूँकि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है तो इसके लिए कंपटीशन का लेवल भी उतना ही होता है. हर साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं एनडीए के और उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लाख बच्चे अपियर करते हैं. आउट ऑफ दैट 6 to 7 लाख अराउंड 8 to 9,000 बच्चे रिटन को क्वालिफाई करते हैं. आफ्टर दैट दे आर गोइंग फॉर देयर एसएसबी और वहाँ पे 700 से 800 बच्चों को रिकमेंड किया जाता है एसएसबी में. फिर उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है एंड लास्टली वी आर हैविंग 382 सीट्स. अभी लास्ट ईयर से गर्ल्स के लिए 19 सीट्स को अलॉट किया गया है. तो सम 400 से यहाँ पे सीट्स रहती हैं और वो रिकमेंड करके 400 तक लेके आते हैं. तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ एनडीए बिकॉज इट्स ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट है. तो वहाँ पे उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है और उसी तैयारी के साथ में आप इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं. जी सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा. आप ऑफिसर्स करियर एकेडमी, वेल इट्स अ बिग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, 300 से 400 मिनिमम जैसे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है. तो आपको इतनी बड़ी एकेडमी चलाने में प्रॉब्लम फेस नहीं होता कि इतने सारे बच्चे हैं, मैनेज कैसे कर लेते हो आप सर? अगेन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है. ये एकेडमी मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैसन है. आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू एकेडमिक्स एंड ऑलवेज मेरे मन में भावना रहती है कि जो बच्चे मेरे हैं ये मेरे खुद के बच्चे हैं और अपने बच्चों के साथ कभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. तो ये 300 बच्चे रहते हैं, दे आर लाइक माई किड्स. इनके साथ रहना, चूँकि मैं 24/7 विद फैमिली यहाँ पे रहता हूँ तो हमारा बच्चों से एक अटैचमेंट हो जाता है. जो बच्चे हमारे सर्विस में चले जाते हैं, आज की डेट में ऑफिसर्स एकेडमी के बच्चे इन द डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट पोस्ट में अवेलेबल हैं. लेट इट बी ऑफिसर रैंक और कमांडोज और जवान, हर जगह ऑफिसर्स के एकेडमिक बच्चे हैं. जब वो बच्चे वहाँ से आते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मिलने आते हैं तो इट गिव्स ए इमेंस प्लीजर टू मी कि यस आज हमारे बच्चे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में एज एन ऑफिसर है, एज ए कमांडो हैं. तो उन बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स की तो कोई बात ही नहीं आती है यहाँ पे. इट गिव्स मी ए ग्रेट फीलिंग कि हम उन बच्चों के साथ रह रहे हैं जो बच्चे हमारे देश का भविष्य संवारने और सजाने वाले हैं, जो हमारे फ्यूचर और हमारे देश को प्रोटेक्ट करने वाले हैं. तो इन बच्चों को ट्रेन करना ये गौरव की बात है, ना कि प्रॉब्लम की बात है. एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक बेहतरीन समय क्या होता है? जैसे एक मिनिमम एज क्या होती है कि वो समय एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर होगा वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपके हिसाब से? ओके, गुड क्वेश्चन. सुमित, देखिए कभी भी हम जो एनडीए या डिफेंस की तैयारी होती है, लोग बचपन से एक सपना होता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो हम बचपन से ही तैयारी कर सकते हैं. लेकिन आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो 10वीं के बाद ये सबसे अच्छा समय होता है 11th और 12th का. जब हम 11th और 12th एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम एनडीए की अगर तैयारी करते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल टाइम अवेलेबल विद अस. बिकॉज कि जो हमारा एनडीए का सिलेबस होता है ये मैक्सिमम 11th और 12th के बेस पे होता है. इसकी जो मैथ होती है, जो हमारी जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, उसका मैक्सिमम पोर्शन 11th और 12th में कवर किया जाता है. तो 10वीं के बाद 11th-12th इज़ द बेस्ट पीरियड in which you can start your preparation for the NDA or defense forces. Okay. One more question from my side, sir. As per your experience, NDA की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या कोई अकेडमी को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है या वो बिना अकेडमी को ज्वाइन किए भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? Okay. See, Sumit, it's a question which I can't exactly answer. Okay. This depend upon a individual. एक बच्चा एक गांव से रहकर भी एनडीए के एग्ज़ाम्स को निकाल लेता है और एक बच्चा एकेडमीज में भी रहकर भी नहीं निकाल पाता है. ये टोटल डिपेंड रहता है एक इंडिविजुअल पे, नंबर 1. नंबर 2, सेकेंड चीज़ आती है एटमॉस्फेयर की, कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो उससे कितना इन्फ्लुएंस है. जो बच्चा गांव में रहकर जिसने एनडीए निकाला है वो बच्चा 100% फोकस्ड रहा होगा और उसने पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी की है. तो अगर आपको लगता है कि आप अपने जगह पर रह के 100% फोकस नहीं दे पा रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आज की डेट में सबसे डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन.
अगर आपको लगता है आप ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपना 100% फोकस अपनी स्टडी पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर एक अच्छी एकेडमी को चूज कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको आपके जैसे ही बच्चे मिलेंगे, वही आपको माहौल मिलेगा, वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो ये टोटली आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यस 100% फोकस रहकर मैं अपनी तैयारी कर सकता हूँ, वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड। बट अगेन व्हाट आई टोल्ड कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको आपको अवॉइड करना है। फॉर दैट एकेडमी में बी द बेस्ट प्लेस, जहाँ पे आपको इस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको बच्चे मिलेंगे, जहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो होगी, ग्रुप डिस्कशन में आपको फ़ायदा होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें हैं जो आप इन अकेडमीज में रह के सीख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ विथ अस। तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और आप अपना अगर करियर डिफेंस फील्ड में बनाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।